Hello and good morning to all my dear students. I welcome you in the class of accounts standard 11th. We are continuing with our fifth chapter from second part of your accounts book, that is final accounts. In our last video, we have gone through with the three main components of final accounts. Those were trading account, profit and loss account, and the last component was balance sheet. And even I have given you a task to draw all the specimens in your notebook. Okay, before starting with today's session or with today's e-class, let me revise you again what all things are being recorded in trading account. All the items in relation to purchase and sales are to be shown in trading account. All the purchase expenses are on the debit side of trading account. Closing stock on credit side of trading account. If net sales are more than cost of goods sold, then we arrive gross profit. And if cost of goods sold is more, that means debit balance is more than credit, then it is gross loss. After that, P&L, profit and loss account. All the expenses and losses on the debit side of P&L, all the incomes received during that year, and all the profits and gains of that particular year are on the credit side of profit and loss account. When credit side, that is income side, is greater than your debit side, that is your expenses, it is net profit. And vice versa, if your expenses or debit side is more in comparison to your credit side or incomes, then it is net loss. Lastly, balance sheet. Assets and liabilities. All the assets are to be recorded over here. Fixed assets, those are non-current assets, then investments, then loans and advances, and current assets. As per the format, as per the specimen, it is very compulsory to prepare balance sheet. On the left hand side, there are liabilities. The very first item is capital. If it is net profit, add it to capital, and if it is net loss, deduct it from capital. Then it comes your current liabilities. Fine. This was already taught to you people in my first class. Even I would like to revise you the same statement which I have been telling you in your first video. ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड के अमाउंट्स हैं वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाते हैं, या पीएनएल के डेबिट में जाते हैं, या बैलेंस शीट में एसेट साइड आते हैं. अनदर ट्रायल बैलेंस के जो भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं, अमाउंट्स हैं, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या तो फिर पीएनएल के क्रेडिट में, या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखने होते हैं. दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्टिंग विथ आवर today's new topic, and the name of that topic is adjustment.
Let us first understand the meaning. What is adjustment? Adjustment means those financial transactions of business which are not recorded or wrongly recorded in accounts and it is required for rectification. Adjustment क्या होता है? Adjustments वो होते हैं जो या तो हमने रिकॉर्ड किए ही नहीं हैं या किए हैं तो wrongly रिकॉर्ड कर दिए हैं, अभी उन्हें अपन को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है. Fine. Is this clear? Now one more line I would like to say in front of you, and this line you are supposed to keep it in your mind. That is, trial balance has single effect, same side. Adjustment has dual effect, one debit, one credit. I'll repeat. Trial balance has single effect, same side. Adjustment has dual effect, one debit, one credit. Adjustment को दो इफेक्ट देने होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट. नाउ लेट अस स्टडी हाउ वी आर सपोज्ड टू गिव द इफेक्ट्स ऑफ adjustment. There is illustration number 5 on your page number 131 of textbook. What it says: other than trial balance of Rajan, closing stock of 8,000 is shown as on 31/3/2015. This is the closing stock what you are having. Final accounts are closed and date on 31/3/2015. Show its effect in final accounts. फाइनल अकाउंट्स में हमें इसके इफेक्ट्स शो करने हैं. नाउ वेयर दीज टू इफेक्ट्स आर हियर इन द चार्ट दे हैव शोन. फर्स्ट इफेक्ट इज असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट बैलेंस में दिखाना है अपन को. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट इफेक्ट. I have told you earlier as well, adjustment has dual effect, one debit and one credit. How it is? Let us check it out. Now, can you see over here on the screen I have displayed you? This is the trading account of Rajan. Fine. And on the credit side, it is written by closing stock by 8,000. This is your credit effect. Fine. This is your credit effect. And the next one is your current assets में asset side of balance sheet, closing stock. This will be your debit effect, 8,000 rupees. Is this clear? Moving further on next adjustment, that is unpaid or outstanding expenses. अगर हमने expenses अभी तक भरे नहीं हैं तो इनके effects कहां जाएंगे? Here it is, effect of outstanding expenses in final accounts. One will be the debit effect, that is either in profit and loss account or trading account, and the another will be credit effect, balance sheet में liabilities side as current liabilities. Is this clear? Outstanding expense, अभी तक हमने वो expense भरा नहीं है. Then where it will be? It will be on the debit side of P&L or trading account as per the case may be, and credit effect will be on the liability side of balance sheet. Fine. Is this clear? Next is prepaid expense. Last अपन ने किया था outstanding expense कि हमें expenses भरना बाकी है. Now what if अगर हमने expenses पहले से ही भर के रख दिए हो, so your debit effect will be that it is debit side में अपन क्या करेंगे? P&L के या फिर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे. दिस पॉइंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड. डेबिट में से माइनस मीन्स क्रेडिट इफेक्ट एंड क्रेडिट में से माइनस मीन्स डेबिट इफेक्ट. इज दिस क्लियर? डेबिट का माइनस क्रेडिट एंड क्रेडिट का माइनस डेबिट.
and debit का plus is debit only and credit का plus is credit. So here what we are supposed to do, I am going to show you the illustration as well. I am going to teach you. डेबिट में ट्रेडिंग या पीएनएल के माइनस करना है हमें, और बैलेंस शीट में असेट साइड अपन को करंट असेट्स में उसका डेबिट इफेक्ट शो करना है. दिस इज राइट, इट इज ऑन द डेबिट साइड, यू आर करेक्ट. तो यहां पे क्रेडिट इफेक्ट कैसे आया है? बिकॉज डेबिट में से अपन को क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है. लेट अस go through with one of the illustration. Illustration number 7. Insurance premium in your trial balance is given 15,000. Adjustment में क्या दिया हुआ है? Out of insurance premium paid, जितना हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 3,000 इंश्योरेंस प्रीमियम is paid in advance. 3,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पे कर दिया है, जो इस साल का नहीं है. Mind it, my dear students, I have told you that trial balance has single effect same side. ये trial balance का 15,000 है, कौन सा साइड है यहाँ पे? डेबिट साइड है. ये 3,000 के ड्यूअल इफेक्ट्स जाएंगे because it is adjustment. Adjustment has dual effect, one debit, one credit. Now 15,000 जो है वो आपका कहां पर आएगा? पीएनएल में आएगा. टू इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 से एक ही इफेक्ट आया, वो भी सेम साइड आया, आप देख सकते हो डेबिट साइड है. माइनस क्या करना है डेबिट में से? माइनस प्रीपेड, जो इस साल का नहीं है. हम फाइनल अकाउंट्स कब के बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 2015. तो ये आने वाले साल का है, 15-16 का है. इसके लिए हमें यहां पर उसको शो नहीं करना है. प्रीपेड को हम माइनस कर देंगे. डेबिट में से अगर माइनस किया तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? क्रेडिट इफेक्ट हुआ. अनदर इफेक्ट विल बी ऑन योर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. फर्दर आपको आने वाले साल में 3,000 रुपए कम भरना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? सो दिस वॉज योर प्रीपेड एक्सपेंस. ट्रेडिंग या पीएनएल में से डिडक्ट करो तो वो क्रेडिट इफेक्ट होगा. असेट साइड में आप उसको शो करो, देन इट विल बी योर डेबिट इफेक्ट. नेक्स्ट इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम. इनकम रिसीव होना बाकी है, तो इसके इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में क्या होंगे? तुम्हारा इनकम मिलना बाकी है तुम्हें. हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के ऐड करेंगे उस रिस्पेक्टिव इनकम की अंदर, और असेट साइड में बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? करंट असेट्स में. दिस विल बी योर डेबिट इफेक्ट. लेट अस अगेन गो थ्रू विद द illustration. What it is? It is the trial balance of Sanket as on 15. Rent received, credit में दिया हुआ है 22,000. Rent receivable और मिलना बाकी है, जो इसी साल का है, अभी तक मिला नहीं है. ट्रायल बैलेंस है सिंगल इफेक्ट. ये 22,000 को क्रेडिट इफेक्ट एक ही होगा, पर ये जो रेंट रिसीवेबल है ये एडजस्टमेंट है, इसको ड्यूअल इफेक्ट होंगे. पीएनएल के क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है रेंट रिसीव्ड कितना? 22,000, इसका सिंगल इफेक्ट. और रिसीवेबल के दो और भी हमारी इनकम है जनरेट होना बाकी है. इट इज रिसीवेबल. सो क्रेडिट का प्लस इज क्रेडिट इफेक्ट. सो इट इज योर आउटर कॉलम में 24,000. नेक्स्ट आएगा आपका करंट असेट्स में रेंट रिसीवेबल, तुम्हें मिलना बाकी है. डेबिट साइड में कितना दिखाओगे तुम इसको? 2,000. दिस इज योर डेबिट इफेक्ट. इज दिस क्लियर टू यू पीपल? रेंट रिसीव्ड एक ही इफेक्ट, रिसीवेबल के दो, बिकॉज इट इज योर एडजस्टमेंट. हमने क्या किया है? ड्यूअल इफेक्ट दिखाया है. क्रेडिट में प्लस क्रेडिट एंड असेट्स में डेबिट इफेक्ट. Now coming on to the next adjustment, that is interest on capital. In between भी बहुत सारे आते जाएंगे, हम सम्स के बीच में भी सीखते रहेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट एंड फोकस करने जैसे एडजस्टमेंट हैं वो मैं आपको अभी यहां पर शो कर रहा हूं. बाकी की बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी हम करेंगे इन बिटवीन अवर सम्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने पैसा लगाया है. बिजनेस एंड ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं अकाउंट्स में.
इसके लिए ओनर को इंटरेस्ट उसके लगाए हुए पैसों के ऊपर बिजनेस देता है। सो बिजनेस देता है इंटरेस्ट, ब्याज देता है ओनर को, इसके लिए बिजनेस के लिए वो क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। और अपन को इसको कैसे इफेक्ट्स में शो करना है, लेट अस चेक इट आउट। वन विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो डेबिट इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल के अंदर अपन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, दिस विल बी योर क्रेडिट इफेक्ट। मनीषा का ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, 5 लाख रुपए आपको कैपिटल के दिए हुए हैं और 10% उसका कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। 5 लाख का 10% कम्स टू 50,000। हमें कहां शो करना है, P&L के डेबिट साइड में लिखना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, ये डेबिट इफेक्ट हुआ, और कैपिटल में प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कौन सा इफेक्ट हुआ तुम्हारा, क्रेडिट इफेक्ट। Likewise only there is interest on drawings. ओनर बिजनेस में से पैसा उठाता है तो बिजनेस उससे ब्याज लेती है, बिजनेस ब्याज लेती है ओनर से, इसके लिए बिजनेस के लिए वो इनकम क्रिएट होता है। तो एक अपन को शो करना होगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, इट इज देयर on the screen on credit side of profit and loss account and on the balance sheet liability side added or deducted from capital। हम दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, वो कौन सा होगा, इफेक्ट डेबिट इफेक्ट होगा। लेट मी पुट यू इन द इलस्ट्रेशन। यहाँ पे कैपिटल का भी है और ड्राइंग्स का भी है, यहाँ पे हम सिर्फ ड्राइंग्स को फोकस कर रहे हैं। ड्राइंग्स इज ऑफ 10,000 एंड इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड इज 5%। 10,000 का 5% will come to 500 और इसका इफेक्ट यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हेली। इनकम साइड जस्ट बिकॉज कि वो बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 यहां पर आया है और हमें बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, ओवरऑल आपको लेस करना है। यहां पे प्लीज चेक दी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपने बैलेंस शीट जब बनाया है स्पेसिमेन वहां पे भी सीखा होगा। कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, लेस मींस आपको 5.5 लाख में से ये ड्राइंग्स को भी लेस करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी डिडक्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप यहां से डिडक्ट करेंगे, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट का माइनस इज योर डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपका P&L में। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? Moving further, this is very much important. Please do understand very carefully illustration number 15. The following balances are taken from the trial balance of Meena as on 15. Debtors हैं, BDR है, discount allowed है, bad debts हैं, discount reserve on debtors है। Let me first revise what are bad debt reserve. हमें साल के 1 year period के अंदर कोई भी ऐसे हो सकते हैं हमारे डेटर्स जो हमें पैसा ना दे, जो हमें पैसा नहीं देते हैं उसे हम बैड डेट कहते हैं कि अभी हमें उनमें से पैसा नहीं मिलने वाला है। जिस साल बिजनेस यूनिट को प्रॉफिट होता है वो अलग से उन प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा करके पैसा साइड में रखता जाता है टू मीट ऑल दीज टाइप ऑफ लॉसेस। ये बैड डेट को मीट करने के लिए हमारे बिजनेस यूनिट ने क्या बनाया है, रिजर्व क्रिएट किया है। ये स्पेसिफिक रिजर्व है, बैड डेट रिजर्व। दैट मींस हम ये जो 5,000 है वो बैड डेट्स को सेट ऑफ करने के अलावा और कहां पे भी यूज नहीं कर सकेंगे। तो उन बैड डेट्स को जो अपन को पैसा नहीं देते हैं उनके लिए पहले से सेट अमाउंट प्रॉफिट्स में से अलग से रखा जाने वाला जो पैसा है उसे अपन बैड डेट रिजर्व कहते हैं। हमारे कोई डेटर्स ऐसे भी हैं जो हमें टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो हम उन्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी अलाउ करते हैं सही टाइम पर पेमेंट कर देने का। तो उस टाइम के लिए अपन को क्या होगा, से फॉर एग्जांपल 5,550 एक डेटर को देने का है, हम उसको बोलते हैं कि आप 5,500 दे दीजिए, 50 हम आपको डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो 50 हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं वो कहां से दे रहे हैं, हमने प्रॉफिट्स के टाइम पे पहले से उनमें से रिजर्व क्रिएट करके रखा है तो उसमें से उस रिजर्व में से हम 50 को ले लेंगे। इसके लिए भी हमने अलग से रिजर्व बना के रखा है जिसको अपन कहते हैं DRD।
इज दिस क्लियर? सो ये सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं, इन सब का सिंगल इफेक्ट जाएगा। यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ 6000 एज बेड डेट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से हमें 6000 रुपीज बेड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। Next is provision for doubtful debts at 5% is to be made on debtors. 5% अपन को BDR create करना है, and one more is there, 1% is to be made for DRD discount reserve on debtors. यहाँ पे first आपको profit and loss दिखाया है। I am moving on to balance sheet. पहले हम balance sheet को देखेंगे। डेटर्स हमारे कितने हैं? 2 लाख रुपीस के हैं। यहां पे वो सारी बातें माइनस होंगी जो एडजस्टमेंट में 3 बातें दी हुई हैं। 6000 आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है, तो हमने क्या लिखा? बैड डेट एडजस्टमेंट, और हमारी प्रैक्टिस में हम इसको यहां पे लिखेंगे बैड डेट्स न्यू। ये न्यू इसी के लिए क्योंकि और हमें क्रिएट करना है 6000। अभी माइनस किया तो टोटल आया 1,94,000। इसी 1,94,000 का हमें क्या क्रिएट करना है? 5% BDR। ये 5% BDR का मतलब क्या हुआ? हमें रिजर्व क्रिएट करके रखना है 9700 का। 194 में से 97 डिडक्ट हुआ 184,300। 184,300 का 1% हमें क्या क्रिएट करना है? DRD। सो इट इज 1843। ये सब होने के बाद इसके पैरेलल में, इसके सामने हमें आउटर कॉलम में लिखना होगा डिडक्ट करने के बाद 1,82,457. This all subtraction we have done on the asset side, that means from the debit side. डेबिट में से ये सारे माइनस हो रहे हैं, that means हमने इन सबको कौन सा इफेक्ट दिया है? हमने इन सब में क्रेडिट इफेक्ट दिया है और सबका डेबिट इफेक्ट होना बाकी है। सबका डेबिट इफेक्ट कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक फॉर्मेट होता है, बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड। ये होता है तुम्हारा BD-BDR का फॉर्मेट। आई एम रिपीटिंग, BD ओल्ड प्लस BD न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड। बैड डेट्स ओल्ड आपको कहां से मिलेंगे? इट इज फ्रॉम योर ट्रायल बैलेंस। बैड डेट्स ओल्ड यहां पे आप देख सकते हैं, बैड डेट्स ओल्ड ये आपके ट्रायल बैलेंस का है, 10,000 यहां आएगा, 6,000 आपका ये जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है जस्ट बिकॉज इट इज बैड डेट न्यू वाले एडजस्टमेंट के होते हैं। नेक्स्ट इज BDR न्यू, अपन ने बैलेंस शीट में दिखाया था 9700। सम टोटल ऑफ ऑल दीज 3 विल कम टू 25,700। उसमें से BDR ओल्ड आपको डिडक्ट करना है, दैट इज ऑफ 5,000। यहां पे 5,000 आपने माइनस करके आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दिया, that your amount comes to 20,700। ये फॉर्मेट था अपन का BD-BDR का। नेक्स्ट इज योर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए भी एक अपना उसका फॉर्मेट है, क्या है? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन, वो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा। इट इज ऑफ 600, ब्रिंग इट ओवर हियर 600। ये हमने 1843 बैलेंस शीट में देखा था। सो DRD न्यू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये न्यू है। डिस्काउंट गिवन प्लस DRD न्यू ऐड करना है माइनस DRD ओल्ड। DRD ओल्ड आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 400। जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इट विल बी इन द आउटर कॉलम, दैट इज 2,043 rupees. Please do go through once again with the same illustration. Please do revise yourself because such type of adjustments are very important in your sums. There are few more adjustments. Those all adjustments we will be learning as and when they'll come in the practical questions. So let us end our today's e-class over here. In your today's homework, you people are supposed to solve illustration number 5 to illustration number 15. 5 से 15 illustrations जो आपके स्पेशली एडजस्टमेंट वाले हैं, वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। एज एंड व्हेन यू विल डू ऑल दीज टाइप ऑफ single adjustments, you will be very much benefited for solving your practical questions. So it's again my appeal to you all that please do complete your task from illustration number 5 to 15. All these are
adjustments, few more adjustments are to be learned, but as and when we will start with practical question, जैसे जैसे new adjustment आते जाएंगे, I'll focus on all those adjustments and we will complete all such type of adjustments while solving our practical question. So thank you students for listening me. Thank you and have a nice day.